Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English, topic reusing the waste, part 3rd. Dear students, I hope you are very well at home. Dear students, today I discuss with you in this offline class part 3rd of this lesson, namely reusing the waste. Now, we shall start. Metal is the most important product that can be recycled easily. The car that you own or a car on the road will consist partly of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other material. In India, efforts are on to reutilize and recycle the waste through treatment plants in many parts of the country. The National Environmental Engineering Research Institute NEERI at Nagpur is also involved in developing suitable technologies for the treatment of wastewater and utilization of domestic and industrial wastewater in agriculture after purifying it. One purifying plant in Gujarat is able to treat 450,000 liters of waste daily and generating energy equal to that produced by 10 tons of coal. But this is not enough. There is a lot of waste material that we do not use yet. Our population is growing at a fast rate, but our resources, especially the natural resources, are very limited. We cannot afford to waste our resources when there are means and methods available to reuse them. Recycling the waste material not only saves money but also helps the environment. Do you know the 3 R's of the modern world? These are: reduce, meaning let us minimize our waste output. Reuse, don't simply use and throw. Reuse whatever you can. Recycle, things like paper, plastic, glass, metal, etc. should also be recycled, that is, converted to fresh raw material. So in recycling, we will be saving our lives from the hazards of pollution. It would also mean saving our valuable resources. Dear students, we have already discussed before in 2 classes regarding reusing the waste, how we can use the waste after purifying, or we can say after treatment of that particular object which we have already utilized it in the treatment plant. We can once again that object we can once again reuse it. So this process is called recycling. This process is called recycling. I have already discussed in this process what is recycling. Recycling means recycling is the process of converting waste materials into new materials and objects. वो चीजें जो हमने इस्तेमाल की है एक बार, फिर उनको वापस भेजा जाएगा फैक्ट्रीज में, वहां पर उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा, वहां पर उनको ठीक किया जाएगा, फिर हम इस चीज को दोबारा इस्तेमाल करेंगे. उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग. मेटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट कैन रिसाइकल्ड इजीली. जो मेटल है, मेटल के माने धात. कोई भी मेटल है, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, ये भी रिसाइकल्ड होता है. जो मेटल है ये भी, उसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं. और इसकी जो रिसाइकलिंग प्रोसेस वो बहुत ही आसान है, वो इजीली है. The car that you own or a car on the road will consist part of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other materials. अगर आपके पास कोई कार हो, कार की मानी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है आपके पास, उसके जो पार्ट्स है अगर वो पुरानी हो गई, अगर वो जो कार है आपके पास वो पुरानी हो गई, इसके जो पार्ट्स है वो उसके जो स्क्रैप, उसको हम स्क्रैप, उस कार को हम स्क्रैप्स करेंगे. उसके जो पार्ट्स है वो हम अलग अलग करेंगे, उसको टुकड़े करेंगे. फिर उन टुकड़ों को फिर उस कार के जो पार्ट्स है बिल्कुल उनको हम प्लांट में, ट्रीटमेंट प्लांट में ठीक करेंगे, फैक्ट्रीज में ठीक करेंगे. फिर उसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं या हम दूसरी गाड़ी भी बना सकते हैं. इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है, द कार दैट यू ओन और ए कार ऑन द व्हील रोड कंसिस्ट पार्ट ऑफ अर्लियर कार्स दैट हैव बीन स्क्रैप्ड. हम उसको स्क्रैप भी कर सकते हैं, हम उसके पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं. एंड रिसाइकल इनटू न्यू स्टील एंड अदर मटेरियल्स. फिर हम उसको न्यू स्टील भी बना सकते हैं या और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हम बना सकते हैं. In India,
efforts are on to utilize and recycle the waste through treatment plants in many parts of the country. अब हम अपने मुल्क की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे हम। यहाँ पर भी हम बहुत सी कोशिश चल रही है, एफर्ट्स चल रहे हैं कि जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स। इन इंडिया एफर्ट्स आर ऑन टू यूटिलाइज एंड रिसाइकल द वेस्ट। इंडिया में ये कोशिश चलती है इस वक्त कि जो चीज हमने इस्तेमाल की है उनको हम यूटिलाइज करेंगे, हम उनको दोबारा इस्तेमाल करेंगे थ्रू रिसाइकलिंग प्रोसेस। हम ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए उन चीजों को दोबारा ठीक करेंगे और फिर इन चीजों को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इन मेनी पार्ट्स ऑफ ये जो प्रोसेस चलते हैं मुल्क में बहुत से हिस्सों में ये चलते हैं ये प्रोसेस कि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस हमारे मुल्क में भी बहुत से हिस्सों में चलती है। The National Environment Engineering Research Institute at Nagpur is also involved in developing suitable technologies for the treatment of wastewater. यहाँ पर इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है नागपुर NAGPUR। नागपुर एक हिंदुस्तान में एक सिटी है, वहां पर एक प्रोसेस चल रही है। वहां पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NEERI, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नागपुर में है। वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस इंस्टीट्यूट में, इस इदारे में क्या काम चल रहा है? is all involved in developing suitable technologies for the treatment of wastewater. इस नागपुर में इस NERI में जो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में, वहां पर यह प्रोसेस चलता है। जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। वहां पर नागपुर में एक प्लांट में इस वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई किया जा रहा है, फिर उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। In developing suitable technology for treatment of wastewater and utilization of domestic and industrial wastewater in agriculture after purifying it. इस नागपुर में जो ये इंस्टीट्यूट है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में, वहां पर वेस्ट वाटर को उस वेस्ट वाटर को साफ किया जा रहा है और उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको नागपुर इंस्टीट्यूट में ठीक किया जा रहा है, उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है, फिर उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक कोशिश चल रही है इंडिया में, एक इंस्टीट्यूट चल रहा है नागपुर में। One purification plant in Gujarat is able to treat 450,000 liters of waste daily and generate energy equal to that produced by 10 tons of coal. और दूसरा प्लांट चल रहा है गुजरात में, वहां पर करीबन 4.5 लाख लीटर्स ऑफ वाटर जो है वेस्ट वाटर है उसको ठीक किया जा रहा है। वन प्यूरिफिंग प्लांट इन गुजरात इज एबल टू ट्रीट 4,50,000 लीटर्स ऑफ वेस्ट डेली। जो गुजरात में जो प्लांट है प्यूरिफाइंग प्लांट जो है वहां पर 4.5 लाख वेस्ट पानी को बिल्कुल ठीक करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड जनरेटिंग एनर्जी, और जो 4.5 लाख जो वेस्ट वाटर है उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितने 10 टन ऑफ कोल जितने एनर्जी देते हैं, वहां पर हम 4.5 लाख जो वेस्ट वाटर है उससे हम वो एनर्जी हासिल करते हैं। बट दिस नॉट, इतना ही काफी नहीं है कि इंडिया जो ये बड़ा मुल्क है, बट इतना ही काफी नहीं है। हमें और इस रिसाइकलिंग के लिए हमें कुछ और मेहनत करने की जरूरत है और कुछ और टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट वी डू नॉट यूज येट। हमारे मुल्क में बहुत से वेस्ट मटेरियल, इस वक्त भी बहुत से वेस्ट मटेरियल है जिनको हम अभी भी रीयूज नहीं करते हैं, जिनको हम अभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। Our population is growing at a fast rate। हालांकि हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन आबादी है वो बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ते हैं, एट अ फास्ट रेट वो बढ़ते हैं। बट आवर रिसोर्सेज स्पेशली द नेचुरल रिसोर्स आर वेरी लिमिटेड। लेकिन जो हमारे जराया है, जो रिसोर्सेज है, खासकर जो नेचुरल रिसोर्स है, जो कुदरती जराया है, वो बहुत ही लिमिटेड है, वो महदूद है। इसलिए जो चीजें हम इस्तेमाल की उनको दोबारा इस्तेमाल करना ये बहुत ही हमारे लिए बिल्कुल फायदेमंद है और जरूरी भी है। We cannot afford to waste our resources when there are means and methods available to reuse them। हालांकि हम ये कोशिश नहीं करते हैं, we cannot afford to waste our resources। हम ये नहीं कोशिश करते हैं जो वेस्ट रिसोर्स है हम उनको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं करते। हालांकि हमें करना चाहिए, हमें वेस्ट मटेरियल्स को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते हैं। बिकॉज when there are means, हालांकि हमारे पास मीन्स और मेथड्स भी अवेलेबल है, हमारे पास
देयर आर मीन्स एंड मेथड्स अवेलेबल टू यूज, हमारे पास मीन्स और मेथड्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है उन चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना, लेकिन हम वो उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, even though हमारे पास means and methods है. Recycling the waste material not only saves money but also helps the environment. हालांकि जो ये रिसाइकलिंग जो है, जो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है, जो चीज हमने इस्तेमाल किए हैं फिर हम उनको दोबारा इस्तेमाल करना, ये या वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग, जो हम वेस्ट मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पैसों को भी नहीं बचाता है, ये पैसों को ही नहीं बचाता है बल्कि माहौल को भी साफ रखने में अहम रोल अदा करता है. जो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ये मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, जो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ये हमारे पैसों को ही नहीं बचाता है बल्कि हमारे माहौल को भी साफ रखने में अहम रोल अदा करता है. डू यू नो 3 R's ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड? दीज आर, क्या आपको पता है जो 3 R's क्या है? 3 R's इस वक्त जो एक ट्रेंड दी गई, एक नया जो स्लोगन दिया जा रहा है, उसके माने 3 R's. 3 R's. 1 R जो है वो है रिड्यूस, पहला जो R है वो है रिड्यूस. दूसरा R जो है वो है रीयूज. तीसरा R जो है वो है रिसाइकल. ये 3 R's है, ये है 3 R's. पहला R जो रिड्यूस, हमें वो मटेरियल इस्तेमाल करना जिसको वेस्ट कम निकले. दूसरा है रीयूज, जो चीजें हमने इस्तेमाल किए हैं उनको दोबारा इस्तेमाल करना है आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर प्यूरिफाइंग, उनको दोबारा इस्तेमाल करना है, उसको बोलते हैं रीयूज. दूसरा आ रहा है रीयूज. और तीसरा है रिसाइकल, जो हम डिस्कस करते हैं, जो चीज हमने इस्तेमाल की है आफ्टर रिसाइकलिंग वी कैन यूटिलाइज दीज थिंग्स वंस अगेन. जो ये मॉडर्न दुनिया में ये 3 R's है, 3 R's है. वहां पहला R जो है वो रिड्यूस, हमें वो मटेरियल बनाना है जिसका वेस्ट कम निकले. दूसरा R ये है रीयूज, जो चीज हमने इस्तेमाल की है उनको दोबारा इस्तेमाल करना है. डोंट सिंपली यूज एंड थ्रो, हालांकि हम उनको थ्रो नहीं करना है. रीयूज व्हाट एवर यू कैन, हमें उन चीजों को रीयूज करना है, हमें उन चीजों को व्हाट एवर जो भी चीज हम उनको रीयूज कर रहे हैं. दूसरा आ रहा है. तीसरा आ रहा है रिसाइकल. रिसाइकल के माने थिंग्स लाइक पेपर है, प्लास्टिक, ग्लास है, मेटल है, एक्स्ट्रा शुड ऑल्सो रिसाइकल. इन चीजों को रिसाइकल करना है, चाहे पेपर हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे ग्लास हो, शीशा हो, चाहे मेटल हो, जो धातु हो, उनको रिसाइकल करना और दोबारा इस्तेमाल करना. कन्वर्ट फ्रेश रॉ मटेरियल, उनको दोबारा नई चीजें बनाना, उनको दोबारा इस्तेमाल करना. सो इन रिसाइकलिंग वी विल बी सेविंग आवर लाइव्स फ्रॉम द हजार्ड्स ऑफ पोल्यूशन. लेकिन रिसाइकलिंग के जरिए हम इतना ही नहीं, हम अपने पैसों को भी नहीं, हम अपने पैसों को ही नहीं बचाते हैं बल्कि इन रिसाइकलिंग वी विल बी सेविंग अवर लाइव्स, हम अपने आप को बचाते हैं, हम अपने जानों को बचाते हैं, हम अपने आप को बचाते हैं. किससे? फ्रॉम द हजार्ड्स ऑफ पोल्यूशन के खतरे से हम बचाते हैं. अगर हम रिसाइकलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे इस वक्त भी हम अपने आप को बचाएंगे पोल्यूशन से, गंदगी से हम बचाएंगे. इट वुड ऑल्सो मीन सेविंग आवर अवेलेबल रिसोर्सेज. इसके अलावा अगर हम ये रिसाइकलिंग प्रोसेस करेंगे, इसके अलावा क्या बच जाएगा? मीन्स सेविंग आवर अवेलेबल रिसोर्स. हम कीमती जो रिसोर्स है, कीमती जो जराया, हम उनको बचाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, I hope you can understand this offline class and accordingly you write down these words in your English exercise notebook. Thanks.